Assalamualaikum students. How are all of you? Hopefully you all will be fine. Okay student, as we were reading your chapter number 3, we have read your the chapter number 1 of that novel. Now the chapter number 6 of that book, we are going to continue the reading of it. Open your book, page number 31. A boy from Makkah. And the chapter number 6. Manan found Ahmad's life so interesting that he couldn't put the book down. Manan को जो था वो बहुत ज़्यादा वो book जो थी वो interesting लगी. That is why he couldn't put the book down. इसी वजह से वो अपनी book रखता ही नहीं था. And he read up to the chapter 6 और उसने जो था chapter number 6 तक इसकी reading जो थी वो chapter number 6 तक इसने कर ली. Now the chapter number 6 about the boy Ahmed. The truth is that in the household of Sheikh Abdul Hamid, Ahmed was never treated as a mere boy. Mere mean a smaller thing or something cheaper, or in Urdu we can say that it's a hakeer या कोई कमतर चीज जो थी वो उसको शेख अब्दुल हमीद के घर में जो था उसको बिल्कुल भी किसी हकीर सी चीज की तरह से ट्रीट नहीं किया गया था. He was serving there. His father left him in the house of Sheikh Abdul Hamid to serve their family. And what is the treatment of the whole family with that boy is this is the whole story of this chapter. Everybody, the master, the mistress and their daughter looked upon me as one of the family. वो मुझ पे किस तरह से देखते थे, ऐसे जैसे कि वहाँ पे जो इसके मास्टर थे, मिस्ट्रेस थी और उनकी जो बेटी थी, वो सब किस तरह से देखते थे इसको, जैसे वो उनकी ही फैमिली का कोई मेंबर हो. This made me anxious. It made me more concerned कि वो जो था इस बारे में और भी ज्यादा ख्याल रखने लगा, केयरफुल हुआ, to do everything to please them, कि वो उनको बहुत अच्छी तरह से सर्व करे and to please them, उनको खुश रखने के लिए, and make them feel their trust and love were not misplaced, और उनको ये फील कराने के लिए कि उनका ट्रस्ट और लव जो है वो कहीं भी जाया नहीं हुआ. My loneliness, my sense of loss and of being lost fell away from me. My loneliness is the to be alone, अकेला होना. My sense of loss, और उसमें वो एक फीलिंग आ गई थी कि उससे कुछ खो गया है, खत्म हो गया है. Of being lost fell away from me, उसको सब कुछ जो था वो भूल गया था. And I was once again a child enjoying a comfortable life. और वो again से वो ही बच्चा बन गया था जो अपनी लाइफ को enjoy कर रहा है with content, इत्मीनान से and secure, और बहुत ज़्यादा महफूज है वहाँ पे. This made me, I am ashamed to confess, nearly forget my family and my village, all that had made up my former world. Confesses to admit some crime and he was feeling ashamed. उसको इस बात पे शर्मिंदगी हो रही थी, ये बात एडमिट करते मानते हुए that he has nearly forgot all his family, कि वो जो था वो अपनी फैमिली को जो था तकरीबन भूल चुका था, and my village, और अपने विलेज को भी भूल चुका था. All that he made up my former world, जिसने जिसकी वजह से इसकी ये दुनिया बनी थी. A world I thought, वो दुनिया I thought, मैंने सोचा, I couldn't exchange for anything else, जिस दुनिया को मैं किसी चीज से बदल नहीं सकता या उसका exchange नहीं ला सकता. I never lacked anything, मुझे वहां पे कमी नहीं थी किसी चीज की. And therefore saved up my all my pay, और वहां पे मैं अपनी जो पे थी सारी वो सेव कर रहा था. Indeed, in fact, in reality,
I once begged Sheikh Abdul Hamid as he was handing me the money not to do so. Begged, he made a request. उसने request की शेख अब्दुल हामिद से as he was handing me the money कि वो उसके अलावा भी कुछ money दे रहे थे उस पे. However, the sheikh would not hear of it. Giving me my 30 riyals, he said. और हालांकि वो उसको पहले से भी जो था वो 30 रियाल्स पे कर रहे थे. टेक इट माई सन, उन्होंने उसको कहा कि इसको बेटा इसको भी ले लो. आई नो ऑल अबाउट द डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस द सिचुएशन, वहाँ के जो हालात थे. उन शेख ने क्या कहा कि मैं वो सब हालात जानता हूँ. दैट फोर्स्ड यू इनटू सर्विस, जिसने तुम्हें मजबूर किया, मजबूर किया है, कंपेल किया है इनटू सर्विस कि तुम इस तरह से सर्व करो. शेख बाकेस टोल्ड मी एवरीथिंग, शेख बाकेस जो था उसने क्या किया था, मुझे सारी बातें बताई थी. आई डू नॉट रिगार्ड दिस सम एज अ सैलरी आई पे यू, मैं इसको कोई इतनी बड़ी रकम नहीं समझता कि मैं तुम्हें आप सैलरी के तौर पे जो देता हूँ. इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम अ फादर टू हिज सन, ये सिर्फ एक गिफ्ट है एक फादर की तरफ से उसके सन के लिए. सन पेज नंबर 32. I, Ahmed, was so moved by his words that I cried. मुझे उसके वर्ड्स जो थे उसने इतना बहुत स्टर किया that by words that I cried कि मैं रो पड़ा. Taking the money, वो मनी लेते हुए I said, God grant you a long life, uncle, and अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे अंकल. May we never lose you, और कभी भी हम चाहें वो आपको खोए ना. I often wondered in my mind, और मैं हमेशा wondered हैरान होता हूँ, सरप्राइज होता हूँ in my mind, अपने माइंड में जब मैं सोचता हूँ how people can be so similar outwardly, कि लोग किस तरह से एक ही जैसे होते हैं बाहर से भी, and yet so different in character and temperament, और किस तरह से डिफरेंट होते हैं अपने कैरेक्टर में और अपने टेम्परामेंट इज द मिजाज और बिहेवियर ऑफ समवन. हाउ वास्टली डिफरेंट, कितना बड़ा डिफरेंस था. फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, was शेख अब्दुल हामिद, और ये जो मिसाल थी यहाँ पे इंस्टेंस में, एग्जाम्पल, मिसाल कौन था यहाँ पे, शेख अब्दुल हामिद फ्रॉम शेख सलाह, शेख अब्दुल हामिद से लेके शेख सलाह तक सब इसके एग्जाम्पल थे. द फॉर्मर, फॉर्मर कहते हैं जब हम किसी जहाँ पे हम दो चीजों को मेंशन करते हैं वहां पे हम जो फर्स्ट वन होता है उसको हम फॉर्मर बोलते हैं, मतलब पहला, एंड द लेटर इज द सेकेंड वन. सो द फॉर्मर मीन हियर द शेख अब्दुल हामिद डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू गुड डीड, उसने अपनी जिंदगी जो थी वो कहाँ पे डेडिकेट कर दी थी, टू गुड डीड्स, अच्छे कामों में, एंड चैरिटेबल एक्ट्स, और बहुत ज्यादा जेनरस एक्ट्स में जिसमें वो लोगों की मदद करता था. कंसिक्वेंटली, इसी के साथ ही एंजॉयड एन एक्सीलेंट रेपुटेशन, वो जो था बहुत ज्यादा एक्सीलेंट, जो उसकी रिप्यूट शोहरत जो थी वो भी बहुत अच्छी थी. एंड अ गुड नेम दैट नेवर फेल्ड टू एवोक लव, जो कभी भी फेल नहीं हुआ. टू एवोक में टू अराइज, किसी चीज को बढ़ाना, उजागर करना. टू एवोक द लव, रिस्पेक्ट एंड प्रेज व्हेनेवर मेंशन, कि उसने जो था किस तरह से जो था कभी भी जो था वो इस बात में नाकाम नहीं हुआ था कि वो लोगों में अपने लिए लव, रिस्पेक्ट एंड प्रेज था वो कलेक्ट कर लेता था. द लेटर लिव्ड, नाउ हियर लेटर इज यूज्ड फॉर द शेख सलाह. लिव्ड फॉर हिमसेल्फ अलोन, वो जो था अकेला ही रहता था. एंड वो सो रैप्ड अप इन हिमसेल्फ, और अपने आप तक बहुत ज्यादा लिमिटेड रहता था. एंड दैट इट नेवर अकर्ड टू हिम दैट द बॉय ही मेड सफर वाज अ ह्यूमन बीइंग हु हैड होप्स एंड ड्रीम्स. एंड कभी भी जो था उसने
ये नहीं फील कराया था कि जो कभी एक बार भी जो था ये ऐसा नहीं हुआ था कि उस बॉय को लगा हो कि वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, और उसे हमेशा यही बताया गया कि वो जो था एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है एंड ही कैन ड्रीम एंड ही हैड द होप्स, हु कुड फील हैप्पीनेस एंड सॉरो, और उसको जो भी गम और खुशी जो है दोनों फील होते हैं। दिस रिडल इंट्रिग्यूड टू अरोज द क्यूरियोसिटी, उसमें जो था बेचैनी उसने पैदा की, मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे अरसे तक, एंड फाइनली प्रूव्ड टू डिफिकल्ट फॉर माय यंग माइंड टू टैकल, और जो था ये मेरे एक यंग माइंड के लिए जो था बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था टू टैकल, कि इसको मैं टैकल कर सकता भारत से स्किलफुली। Nor was I too worried about not finding a solution or an explanation. Nor was I too worried, मैं कभी भी जो था इस बात पे परेशान नहीं हुआ about not to finding a solution, कि मुझे solution निकालना पड़े या explanation देना पड़े। I was too absorbed in my daily happiness, मैं बहुत ज्यादा absorbed, बहुत ज्यादा गुम रहता था इन माई डेली हैप्पीनेस, अपनी डेली की जितनी भी खुशियां थी उनमें, इन द हाउस होल्ड ऑफ शेख अब्दुल हामिद के घर में। एंड वन फाइन डे माई फादर अराइव, और एक बहुत ऐसे दिन पे जो था उसके फादर जो थे अराइव, वहां पे पहुंचे। अ लॉन्ग टाइम हैड पास्ड सिंस वी हैड पार्टेड में अलहदा होना, सेपरेशन में होना, और बहुत लंबा अरसा गुजर चुका था, हमें एक दूसरे से अलग हुए। He embraced me warmly and the tears streaming down में बहने लगे his cheeks, उसके cheeks से, and said his voice trembling, जब हमारी आवाज कांपने लग जाती है, as he pressed me repeatedly to his chest, और वो बार बार जो था वो मुझे प्रेस कर रहा था अपने आप में, and to his chest, Allah be praised, how you have grown, तुम तो बड़े हो गए हो, you are a big boy now, तुम तो एक बिग बॉय बन गए हो। a man, we sat down and talked, हम वहीं पे बैठ गए और हमने बातें की, talked of everything, हर चीज के बारे में। seeing father again, अपने फादर को अगेन देखना। weekend जगा देने को कहते हैं। all my old memories of the village की जितनी भी मेरी पुरानी मेमोरीज थी उन सबको। it was as if his face and eyes reflected images of past. I had thought I could sort of mean get rid of something, इस चीज से छुटकारा हासिल कर लेना या भूल जाना। past I nearly forgot, और जो मेरा पास था वो मैं तकरीबन उसको भूल चुका था। It all came back, अब वो अगेन से आ गया था to me in father's voice, मेरे फादर की आवाज में। as he talked after a whole year of separation, जैसा कि वो पूरे एक साल के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। Okay student, the reading has been completed here. We will continue the reading of this chapter and will complete in the next lecture. Allah Hafiz.